And scholars. I welcome you all today. Book today's welcome you all to the today's book launch event at National Archives of India. It is truly an honor to be part of this event, where we all gather to celebrate not only the launch of a remarkable book, but also the life and legacy of one of the greatest minds in the history of mathematics, Srinivasa Ramanujan. The book we are launching today, Ramanujan, Journey of a Great Mathematician, takes us on a fascinating journey through the life of this self-taught genius. From his early years in the small town of Erode and Kumbakonam to his meteoric rise at Cambridge University, this book beautifully captures the challenges, triumphs, and relentless passion that define Ramanujan's extraordinary contributions to mathematics. I congratulate and welcome the DG of Archives, Sri Arun Singhal, and Dr. Devendra Kumar Sharma for their vision and effort in bringing together this meticulous and insightful project. Before giving a brief on this work, I welcome and thank the panelists, Professor Rajiv Lochan sir, Professor and Head Department of History, Punjab University, Professor Tarun Kumar Das, Professor and Head Department of Mathematics, DU, and Professor Arvind Patel, Professor, Department of Mathematics, University of Delhi, and moderators, Dr. Deepak Jaiswal, Assistant Professor, Delhi University, Mr. Ayush Gupta, Assistant Secretary. I also welcome and thank Ms. Aditi Maheshwari, CEO of Vani Prakashan, to bring out this publication. The inclusion of original letters and historical documents, especially the correspondence between Ramanujan and G.H. Hardy, is something that makes this book exceptional. These letters offer a rare insight into Ramanujan's thoughts, struggles, and his deep friendship with Hardy, who shared his passion for mathematics despite their differences. The book also emphasizes the vital role of figures like Hardy, J.E. Littlewood, Seshu Iyer, S. Narayana Iyer, and Ramachandra Rao, who recognized Ramanujan's brilliance and supported his development, enabling him to overcome challenges and make a lasting impact in the field of mathematics. This book places Ramanujan within the broader context of India's rich and ancient mathematical heritage, connecting his work to the great scholars of the past such as Aryabhatta, Bhaskara, Brahmagupta. Ramanujan's journey reminds us of this deep, centuries-old traditions of mathematical inquiry that have flourished in our land and continue to inspire mathematicians around the world. The book is not just a biography of a great mathematician, but also a testament to the power of determination, resilience, and collaboration. It paints a picture of a man who, despite the personal and academic challenges he faced, rose to become a beacon of intellectual achievement, eventually becoming the first Indian fellow at the Trinity College and a fellow at Royal Society. As we celebrate the launch of this book today, we are reminded of the personal sacrifices that were made by Ramanujan and his family. The unwavering support of his wife Janaki and his parents played a crucial role in this journey. And this book also sheds light on the emotional and familial aspects of the story, giving us a more complete picture of the man behind genius. At the National Archives of India, we are proud to be a part of preserving and sharing the history of such extraordinary individuals, whose lives continue to inspire future generations. The records and documents that we house are invaluable not only to researchers and scholars, but also to public as they open windows into the lives of great figures like Ramanujan. I would like to take this opportunity to thank the authors and all those who have contributed to bringing this book to life. We are truly privileged to host this book launch and panel discussion today. I hope that as we hear more from the panelists and engage in thoughtful discussions, we all leave here with deeper appreciation of Ramanujan's monumental contributions to mathematics and the indelible legacy he has left for us all. Once again, I welcome you all
and thank you for being here. I look forward to an insightful and enriching session ahead. संबोधन वक्तव्य था मैम का, धन्यवाद मैम। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा जो 1947 में स्थापित हुआ था, जो दुनिया भर के तकनीकी, औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को विकसित और प्रकाशित करने का काम करता है, उसके द्वारा हमारे महालेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के को ISO सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कौशल सुतारिया सर को, जो आए मंच पर। ये गर्व की बात है और इस पे तो ताली आनी चाहिए। मैम आगे आ जाइए, आप भी सर थोड़ा क्लोज हो जाइए। कुछ देर बाद और उनके लेखकों से आप मुखातिब हो रहे हैं। वो केवल कहानियाँ नहीं हैं, उसके साथ जो उनकी मूल प्रतिलिपियाँ हैं, जो दस्तावेज हैं, वो आपके समक्ष होंगे कि किस राइटिंग में, किस तरीके के सोच के साथ, किस सन में उन्होंने कैसे हाथ घुमाया होगा और कैसे उस अभिलेख को, कैसे उस सूत्रों को लिखा होगा, वो आपके समक्ष रहेगा कुछ देर बाद। तो मैं बुलाना चाहूँगा इस मंच पे आदरणीय अरुण सिंघल सर को आए। और अच्छा, लॉन्च के बाद ठीक है, हम इसके पहले पुस्तक का लोकार्पण ही करा देते हैं। और पुस्तक लोकार्पण के लिए मैं सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि कृपया जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उसको कार्यान्वित करें। व्यक्तित्व जो था, वो आम आदमी सोचता है कि एक लाइन खींची जाए, एक पंक्ति खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, और आप करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक सरल रेखा खींची जाए और रेखा की तरह ही दिखे। आम आदमी ये सोचता है कि एक लाइन खींचे और एक लाइन की तरह दिखे। मैम साथ हो जाइए आप भी। यस क्लोज। यस हम रुक गए। वेट। एक लाइन खींच के आम आदमी चाहता है कि वो लाइन की तरह दिखे, एक चित्रकार भी चाहता है कि वो एक लाइन की तरह ही दिखे, लेकिन रामानुज चाहते हैं कि वो अनंत बिंदुओं की तरह दिखे या फिर वो अनंत की तरह दिखे। और यहीं से एक यात्रा शुरू होती है, जो कहा जाता है कि 2 + 2 = 4। वहाँ से एक यात्रा अनंत की भी शुरू होती है। एक रेखा के अंदर अनंत बिंदु है और अनंत विस्तार है, और एक गणित का भी विस्तार है। तो हमारे समक्ष आज लोकार्पण हो चुका है, और मैं चाहूँगा कि जो इसके लेखक हैं और सह लेखक हैं, उनके द्वारा ही इस किताब की जर्नी के बारे में, इस किताब के बारे में आप लोग सुने। तो मैं बुलाना चाहूँगा ऑलरेडी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर के बारे में को, जो इस किताब की यात्रा के बारे में, उसके जुटाते समय तथ्यों को, अभिलेखों को किन कठिनाइयों से गुजरे, या क्या यात्रा रही, कैसे प्रेरणादायी या प्रोत्साहन, या कहाँ से इसका प्रेरणा मिली, इसके बारे में ऑलरेडी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर आए और बताएं अपनी बात रखें। धन्यवाद दीपक जी। आदरणीय अरुण सिंघल सर महानिदेशक महोदय, आदरणीय नेहा बंसल मैम, आदरणीय सैयद फैद अहमद, मिस अदिति माहेश्वरी, CEO वाणी प्रकाशन, आपने मुझे इस पुस्तक की यात्रा के बारे में कहने के लिए आमंत्रित किया है। पुस्तक के बारे में विस्तार से सर जानकारी देंगे। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ बात जरूर कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो ये भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
आज जो कार्य किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता, क्षय है। आज ही भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था, आज ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं, आज ही बांके बिहारी भगवान के आप चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। तो यह अवसर है आज का। आज तो ये जो कभी क्षय ना हो वो आज अक्षय तृतीया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने उच्चतम स्थान में होते हैं। तो हमारे सूर्य आदरणीय अरुण सिंघल सर, इनका नाम ही अरुण है, सूर्य है, आज उच्चतम स्थान पर है और उनके द्वारा किया गया यह कार्य कभी क्षय नहीं होगा। हम लोग क्षय हो जाए लेकिन ये कार्य कभी क्षय नहीं होने वाला है, ये कार्य हमेशा रहेगा। तो इसकी प्रेरणा के पीछे माननीय मानसर महोदय का ही विजन और मिशन था। ये बात है 22 जनवरी 2024 की। सर उस समय आप लेखागार को भली भांति जान चुके थे। तो हम एक एग्जीबिशन कर रहे थे, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, 23 जनवरी को उसका उद्घाटन था। तो सर ने कहा देवेंद्र तुम मेरी गाड़ी में ही आ जाओ, हम लोग चलते हैं देखने के लिए। और सर ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, तुम कहाँ परेशान होते रहोगे। तो सर ने उस समय ये चर्चा की कि देवेंद्र किताब लिखनी है रामानुजन पे। मैंने कहा सर मुझे तो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, उन जैसे गणितज्ञ पर लिखना। सर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें इतिहास तो आता है, गणित की चीज़ मैं देख लूँगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तो बेसिकली गणित वास्तव में मेरा बहुत कमज़ोर रहा है, 44% मार्क्स थे। मैथ भी याद करके मैं लिखता था। मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, वो पुलिस सर्विसेज में इंजीनियरिंग किया है उसने। दो ही होता था घर में कि इंजीनियरिंग और साइंस वाले बच्चे होशियार और जो इतिहास और ये सब बच्चे ठीक ठाक। तो इतिहास मेरा बहुत अच्छा था लेकिन गणित मेरा कमज़ोर रहा। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई। सर ने सबसे पहले हम लोगों ने तय किया कि जो प्राइवेट आर्काइव में रामानुजन के पेपर हैं उसको लेके काम किया जाए। रामानुजन के सारे पेपर्स पर रिसर्च करना प्रारंभ किया। उसके बाद जबकि तो बहुत कम पेपर्स थे, फिर अगला सवाल आया कि रामानुजन के पेपर्स हैं तो ये आए भी होंगे, इसकी भी कुछ फाइलें होंगी। तो अगेन इसमें सर्च स्टार्ट हुई, रामानुजन की फाइल इस आर्काइव्स ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, लेटेस्ट इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे उस किताब में हमने वो दिए और पहला चैप्टर भी स्टार्ट उसी से हो रहा है ट्रांसफ़र। 1950 में ट्रांसफ़र हुए, ऐसे मौलाना आज़ाद ने उस पर लिखा है, संतानम जी का पत्र है, वो सारे के सारे उसमें जर्नी स्टार्ट हुई। सर से एवरीडे लगभग कुछ फार्मूले थे हमारे कि हर रोज़ एक पेज तो लिखना ही है, तो 365 दिन में किताब लिख जाएगी। तो मैं वो सर लगातार हर रोज़ ही बात करते थे, एवरीडे कुछ ना कुछ लिखते थे और हर रोज़ तय होता था। उसके बाद तय हुआ कि जब रामानुजन के सोर्स हमारे पास है तो कुछ और जगह भी होंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल है, रामानुजन म्यूजियम मैथ सेंटर है चेन्नई में, वहाँ पे कुछ संभावित है। चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी है, कुंभकोणम म्यूजियम है जहाँ रामानुजन का घर है, म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, शास्त्र म्यूजियम है। तो ऐसी कुछ जगहों पर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सर ने कहा ठीक है चलते हैं। तो सर ने सभी जगह चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, सभी जगह सर ने डीओ लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन को लिखा। इत्तेफाक से वो सर के जूनियर ही थे, सुनील पालीवाल जी। तो हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई, उन सभी ने हमको डॉक्यूमेंट दे दिए। तो वो डॉक्यूमेंट भी हमने इस्तेमाल किए, ये सर के कारण ही संभव हो सका। और इसमें और इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब कोई अच्छा कार्य हो रहा था तो एक नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती चली जाती हैं, गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिल गई। तो जब हम चेन्नई में थे तो जो रामानुजन म्यूजियम में मैथ एजुकेशन सेंटर है, सर एटीबी बॉस से मिले, देखा उनके डॉक्यूमेंट बहुत खराब हालत में। तो सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे अनुरोध किया, एटीबी बॉस जी से, कि आप सर ऐसा है हम रिपेयर करवा देते हैं आपके डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए कॉपी। तो ये सर जब वहाँ उनके डॉक्यूमेंट सर ने रिपेयर करवाए, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, आज हमारी विरासत है, वो इस आर्काइव्स में है और वो डॉक्यूमेंट भी हमने यूज किए। तो ये वहाँ से हमको वो दस्तावेज मिले। कुंभकोणम से प्रोफेसर सुकुमारन आए हुए हैं जो बैठे हैं हमारे सामने, इन्होंने इनको भी पत्र सर ने लिखा और आज देखिए वहाँ से चल के हमारे बीच में आ गए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने पूरे दस्तावेज हमको दिखाए, सारे हमको दिए। तो ऐसे इस यात्रा रही लंबी, लगातार दस्तावेज हमको मिलते रहे, हमको परमिशन भी मिलती रही। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये प्रभु की कृपा से ये सब काम बहुत आसान हो गए। शुरू में बहुत कठिन लग रहे थे कि हमको अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट, उनके डॉक्यूमेंट तो हमारा पार्ट नहीं है, करेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी उन्होंने हमको दिए। पालीवाल जी ने उनकी स्कैन कॉपी दी, हमको अनुमति दी।
ऐसे ही सभी जगह से हमको उन दस्तावेजों को यूज करने का। तो यह इस पुस्तक की जर्नी रही। बहुत सारे पड़ाव आए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कम से कम कई प्रूफ किए, 5-6 प्रूफ हुए। अदिति जी बैठी हुई हैं यहाँ पे, लगातार हमारा उनसे वाद विवाद और संवाद लगातार होता रहता था। धन्यवाद अदिति जी आपका भी, आपने कोई पुस्तक की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जिस ढंग से वाणी प्रकाशन जाना जाता है कि ना तो आपने उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता किया और ना ही प्राइस से। तो ये जो एक वाणी प्रकाशन का फार्मूला रहा है, मैं पिछले 15-20 सालों से उनका लेखक हूँ, कि भाई हमारे लिए पाठक पहले है, व्यवसाय बाद में है। तो वो जो जिस प्रभाव से उस परंपरा को अदिति जी निभा रही हैं, आदरणीय अरुण माहेश्वरी जी से काल से मैंने लिखना शुरू किया था, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो ये पुस्तक की छोटी सी यात्रा है, मैंने संक्षेप में बताया। पुस्तक के बारे में विस्तार से जो सर हैं, सर ही बताएंगे। और सर ने जिस ढंग से मेहनत की है, सर ने जिस ढंग से काम किया, वह मेरे लिए अभूतपूर्व है, मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।